Hello, students. I hope you all are doing well and doing preparation for your upcoming annual exam. And in this video, we are going to solve some questions taken from the chapter Microorganisms, Friend and Foe. And this is the chapter I have taken from class 8 science. We will solve some objective type question and we'll see how is our preparation. So, the first question is, which of the following microorganisms help in the production of biogas by decomposition? So you have to tell which organism, which microorganism produces what biogas. Okay, biogas and how by the decomposition. Okay, decomposition means to break down the complex organic compound into their simpler form. Okay, कोई भी complex organic compound है उसको क्या कर देना उसके सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देना ओके उसको उसके सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देना इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन एंड दिस इज डन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन मान लीजिए किसी भी कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं ओके कन्वर्ट कर देते हैं एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक गैस निकलती है लिबरेट होती है उस गैस को हम बोलते हैं बायोगैस एंड जनरली वो क्या होती है मेथेन ओके मेथेन तो सॉरी मेथेन ओके CH4 तो ये गैस जो है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन करने पर प्रोड्यूस होती है तो ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोन एंड एल्गी सो द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया okay bacteria when the bacteria decomposes the dead organisms and other organic compounds then a gas is produced that gas is called as biogas and that's why the answer is bacteria okay now the second question is foot and mouth disease of cattle is caused by this is a disease caused in a cattle okay and like this you can see the symptoms of foot and mouth disease in the animals like blisters and sores are seen in the legs and in mouth okay and this disease is the viral disease okay it is caused by the virus so the right answer is viruses foot and mouth disease of a cattle is caused by viruses. Now the next question is question number third. The fungus that helps in the preparation of idlis and doshas is called. Okay, वो फंगस जो इडली एंड डोसा तैयार करने में हेल्प करता है ठीक है इडली एंड डोसा जो आप खाते हो सो द microorganism that help to make and cook the idli and dosa and this is very famous disease of south india and the microorganism that help to cook the idli and dosa that is called as yeast okay yeast is the correct answer yeast is a kind of fungus that is very helpful to make the items which we bake okay and the dishes like idlis and dosas. Next question is which of the following is a parasitic protozoan इनमें से कौन सा प्रोटोजोन डिजीज कॉज करता है पैरासिटिक है ठीक है होस्ट पे रहता है किसी की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सरवाइव करता है पैरामीसियम यूग्लिना ट्रैपेनोसोमा अमीबा ठीक है तो इसमें से एक प्रोटोजोआ है ट्रैपेनोसोमा this is the diagram of trypanosoma here you can see the diagram of trypanosoma and you can see this trypanosoma is carried by a fly that is called as cc fly okay cc fly and this cc fly carry the trypanosoma and cause a disease caused as sleeping sickness
Okay, and it is also called as trypanosomiasis. Okay, here in this disease the people feel sleepiness and weakness and lots of different kind of symptoms like fever, headache, body pain. And this is very lethal disease and caused by a parasitic protozoan known as trypanosoma. So this is the answer. The answer is trypanosoma. This is a parasitic protozoan which live in the body of human beings and cause the disease called as sleeping sickness. Okay, sleeping sickness, and carried by the CC fly. Next question is, which of the following reproduces only inside a host cell? Okay, which of the following organism can only multiply, can only reproduce in a host cell? Okay, in a living cell. इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपने नंबर्स मल्टीप्लाई कर सकता है? ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा एंड फंगस. So it's very famous that viruses, okay, viruses are the microorganism that we have both living and non-living. Okay, when they are present outside the host cell, they behave like a non-living matter, and when they get inside a host cell, living cell, then they behave like a living organism. And this, once they get inside the cell, living cell, they start to reproduce. ठीक है, viruses हमेशा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे तभी जब वो होस्ट सेल के अंदर जाएँगे, किसी सेल के अंदर जाएँगे और उस सेल के अंदर ही क्या करेंगे, अपने आप रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने नंबर्स इंक्रीज़ करेंगे. तो वायरसेस क्या हैं? The only organisms that can reproduce only inside a host cell. So this is the correct answer. Next question is, pathogenic microorganisms present in host cells are killed by medicines called. ठीक है, कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच cause diseases, they are called as pathogenic microorganism. एंड जब वो किसी होस्ट सेल के अंदर है, ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया और एनीथिंग, फंगस, तो वो किसी होस्ट सेल के अंदर है, तो उसको हम जिस मेडिसिन से किल करते हैं उस मेडिसिन को क्या कहते हैं? पेन किलर, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स. ओके, सो वी यूज एंटीबायोटिक. Okay, we use antibiotic to kill the pathogens like bacteria, fungus, protozoa. So the correct answer is antibiotic. Next question is, the two microorganisms which live in symbiotic association in lichens are. Okay, lichens is the association of two living organism. Okay, which live together and benefits each other. सिम्बियोटिक रिलेशनशिप या एसोसिएशन क्या होता है? जहाँ पे दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, कोई दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट, फ़ायदा पहुँचाते हैं. ओके, दे नेवर कॉज़ हार्म टू ईच अदर, दे लिव इन अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन. ओके, सो लाइकेन्स क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन का, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है. तो इसमें कौन से दो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली. So the options are fungus and protozoa, alga and bacteria, bacteria and protozoa, alga and fungus. So lichens में होते हैं, this is a lichen. Okay, lichen में दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं. एंड इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है? एक होता है एल्गी, ओके, और दूसरा होता है फंजाई. Okay, algae and fungi, they live together, they associate together, okay, and make a symbiotic relationship or symbiotic structure जिसको हम lichen बोलते हैं. This is a lichen, and so the answer will be alga and fungus. Okay, alga is singular, fungus is singular. Okay, so alga and fungus, these two organisms live in a symbiotic relationship, in a symbiotic association, and make a new structure that is called as lichens. Okay, mm,
Now, the next question is question number 8. The gas released during the preparation of bread is ब्रेड जो आप खाते हो ब्रेड उसको जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ब्रेड बनाने के लिए हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ईस्ट। ओके, ये ईस्ट जो है एक तरीके का फंगस है जो जब हम ब्रेड बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं तो उसमें हम इसको डाल देते हैं। ओके, तो ये जो ईस्ट है वो क्या करता है आटे में प्रेजेंट शुगर को ये ब्रेक कर देता है, उसको फर्मेंट कर देता है अल्कोहल और CO2 में। ओके, जो भी ब्रेड में CO2 प्रेजेंट है ईस्ट क्या करेगा उसको ब्रेक कर देगा इनटू अल्कोहल एंड CO2। ठीक है, तो जब हम उस आटे को बेक करेंगे तो उसमें से CO2 गैस रिलीज होगी और जितनी ज़्यादा CO2 गैस रिलीज होगी उतने ज़्यादा पोर्स इसमें बनेंगे और इस ब्रेड में जितने ज़्यादा पोर्स होंगे उतना ज़्यादा ये ब्रेड फ्लफ़ी होगा, स्पॉन्जी होगा एंड उतना ज़्यादा ये टेस्टी होगा, आपको खाने में अच्छा लगेगा। ठीक है? तो ईस्ट is the microorganism that we use to make the bread fluffy and spongy and क्योंकि ईस्ट ने क्या किया है CO2 गैस प्रोड्यूस की है जिसकी वजह से ये जो है वो ब्रेड फ्लफ़ी एंड स्पॉन्जी होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। The gas released during the preparation of bread is carbon dioxide. This is the correct answer. Next question is Paheli dug two pits. Okay, there is a girl named as पहेली, एक लड़की है जिसका नाम है पहेली। उसने क्या किया दो गड्ढे डग मतलब खुदे हैं। ठीक है, ए एंड बी उन गड्ढों का नाम पिट का नाम रख दिया ए एंड बी। कहाँ पे इसने ऐसा किया इन हर गार्डन। ठीक है, अपने गार्डन में। इन पिट ए शी पुट अ पॉलिथीन बैग पैक्ड विद सम एग्रीकल्चरल वेस्ट। पिट ए में उसने क्या किया कि कुछ एग्रीकल्चरल वेस्ट लिया और उसको पॉलीथीन बैग में पैक्ड करके उसको उस गड्ढे में डाल दिया। ठीक है, पिट ए में। और इन पिट बी शी डम्प्ड द सेम काइंड ऑफ वेस्ट बट विदाउट पैकिंग इट इन अ पॉलीथीन बैग। और पिट बी में उसने क्या किया वही सेम एग्रीकल्चरल वेस्ट जो यहाँ पिट ए में डाला था पैक कर कर पॉलीथीन बैग में, वही सेम एग्रीकल्चरल वेस्ट उसी जैसा दूसरा एग्रीकल्चरल वेस्ट उसने लिया और उसको उसने बिना पॉलीथीन में पैक किए डायरेक्टली किस में डाल दिया पिट बी में। एंड शी देन कवर्ड बोथ द पिट्स और दोनों पिट को फिर सॉइल से कवर कर दिया। व्हाट डिड शी ऑब्जर्व आफ्टर अ मंथ। ठीक है, आफ्टर अ मंथ एक महीने के बाद जब वो उस पिट की को ओपन करेगी तो वो क्या देखेगी व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो ऑप्शंस आर वेस्ट इन पिट ए डिग्रेडेड फास्टर दैन दैट इन पिट बी, waste in pit B degraded faster than that in pit A. Waste in both pits degraded almost equally. Waste in both pits did not degrade at all. ठीक है, ए में जो पॉलीथीन बैग में आपने पैक करके सॉरी पहेली ने आप बैग में कवर करके रखा था वो जल्दी डिग्रेड हो जाएगा डिकम्पोज हो जाएगा या फिर बी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ए वाला जल्दी जो पॉलीथीन बैग में बांध कर रखा हुआ था कवर करके वो जल्दी फास्टर डिग्रेड हो जाएगा। और दूसरे में बोला जा रहा है वेस्ट इन पिट बी विल बी डिग्रेडेड फास्टर। जो एज इट इज़ ओपनली पिट बी में रखा गया था वो पहले डिग्रेड हो जाएगा डिकम्पोज हो जाएगा। और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बोथ पिट्स डिग्रेडेड ऑलमोस्ट इक्वली, दोनों में साथ साथ से सेम टाइम में दोनों में डिग्रेडेशन होगा, दोनों डिकम्पोज होंगे। एंड डी ऑप्शन इज सेइंग दैट दोनों वेस्ट इन बोथ पिट्स डिड नॉट डिग्रेड एट ऑल। दोनों पिट ए पिट बी दोनों में से किसी भी पिट का जो वेस्ट होगा वो डिग्रेड नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। ओके, तो आप जानते हैं कि अगर हम पॉलीथिन बैग में ठीक है वेस्ट को पैक कर देंगे तो क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिग्रेडेड। ठीक है, आप जानते हैं प्लास्टिक्स तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं तो प्लास्टिक्स डिग्रेड नहीं होंगी और उसके अंदर जो कचरा होगा जो वेस्ट होगा वो भी डिग्रेड नहीं हो पाएगा। इट विल टेक सो मच टाइम। ओके, क्योंकि आपने पॉलीथीन बैग में बांध रखा है और पॉलीथीन बैग तो खुद ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जब पॉलीथीन ही नहीं डिग्रेड होगी तो उसके अंदर का सामान कैसे डिग्रेड होगा। ओके, तो इट विल टेक मोर टाइम। एंड जो आपने ओपनली एज इट इज
पहेली ने ज़मीन के अंदर डाला था, तो वो ओपन होगा तो वो आराम से क्या हो सकेगा, डिग्रेड हो जाएगा एंड इट विल डिग्रेडेड फास्टर, ठीक है? क्योंकि वो ओपन है, उसपे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म एक्ट करेंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे। बट जो पॉलीथीन में है, उस पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो पहले पॉलीथीन ही नहीं डिग्रेड हो रही है, ठीक है? तो वेस्ट इन पिट बी डिग्रेडेड फास्टर देन दैट इन पिट ए, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो पिट बी में जो ओपनली एज इट इज़ वेस्ट डाला गया था, वो जल्दी डिग्रेड हो जाएगा दैन द पिट ए, ठीक है? इन कंपैरिजन टू द वेस्ट दैट पहली केप्ड इन अ पॉलीथीन, पॉलीथीन में रखा हुआ कचरा जो है वो जल्दी डिग्रेड नहीं होगा। लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे बहुत दिनों से कचरा जो है फेंका गया है, बहुत कई महीनों से, लेकिन ये डिग्रेड नहीं हो रहा है क्योंकि सारा कचरा जो है वो पॉलीथीन में पैक करके रखा हुआ है। ओके, so this is all for this video. In the next video, we'll solve some other questions of other chapters. Thank you.